Dear students, welcome to Tirthankar Mahavir University Center for Distance and Online Education. Program MA Education, Post Philosophical Foundation of Education. Postcode DMAE 101, Unit 5, Educational Thoughts of Great Philosophers. Objective of these units are, after reading this unit, student will able to compare and contrast the thought of Western and Indian philosophers, analyze the reflection on the concept and educational thought of the philosophers in present educational system, discuss the educational thoughts of the philosophers with reference to concept, aims of education, curriculum, methods of teaching, and discipline. Introduction of this unit. Philosophy and education are closely related to each other. The great philosophers of all times have also been great educators, and their philosophy is reflected in their educational thoughts. Philosophy is the theoretical aspect of education, whereas education is the applied aspect of philosophy. Education practices the theories and principles of philosophy in the school setup. The present unit has been started with a discussion on establishing a relationship between philosophy and education. The second part of the unit discusses the educational philosophers of various great philosophers and educationists like Rousseau, Tagore, Swami Vivekananda, Plato, John Dewey, Jiddu Krishnamurti, Mahatma Gandhi, and Aurobindo Ghosh. The educational thought, including the aims of education, curriculum, method of teaching, disciplinary practices, and the role of teacher and teachers suggested by the great thinkers, have been discussed in this unit. The present and the contemporary practices of education have also been highlighted in view with the educational thoughts of the great thinkers. First of all, Swami Vivekananda. The definition of education according to Swami Vivekananda, that is, education is the manifestation of divine perfection already existing in man, reflects the educational concept of Vivekananda. According to him, education helps to manifest the power, intellectual ability, and the potential which the individual already had, that she or he received from the supreme power or the divine. He strongly believed that knowledge lies hidden in the mind of the individual, which the individual uncovers and develops by his own efforts. स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय, लाइफ स्टेज। स्वामी विवेकानंद का जन्म सन 1883 में कलकत्ता के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके जन्म का नाम नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र जी के पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील थे। उनका पारिवारिक वातावरण धार्मिक था, इसलिए उन्हें बाल्यावस्था से ही धर्म कर्म, पूजा पाठ तथा धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में रुचि उत्पन्न हो गई। नरेंद्र जी की बुद्धि बड़ी कुशाग्र थी। जब वे 5 वर्ष के हुए तो उन्हें स्कूल भेज दिया गया। वहां उन्होंने इतिहास तथा साहित्य के साथ साथ दार्शनिक परंपरा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके पाश्चात्य दर्शन का भी विस्तृत अध्ययन किया। हर्बर्ट स्पेंसर तथा जॉन स्टुअर्ट मिल उनके प्रिय दार्शनिक तथा वर्ड्सवर्थ
एवं शैली उनके प्रिय थे। इस प्रकार विद्यार्थी जीवन से ही नरेंद्र जी अपने सुंदर शरीर, प्रखर प्रतिभा तथा बातचीत के अलौकिक ढंग के कारण लोकप्रिय बन गए। एक बार उनके प्रधानाचार्य जी श्री फेस्टी ने उनके बारे में कहा था, मैं बहुत दूर घूमा हूं पर मैंने इतना गुणवान तथा प्रतिभा संपन्न बालक जर्मन के विश्वविद्यालय में नहीं देखा। एक दिन फेस्टी साहब ने उनका संपर्क स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से कराया। स्वामी विवेकानंद जी का नरेंद्र जी के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके संपर्क में नरेंद्र जी 6 वर्ष रहे तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गए। सन 1886 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का निधन हो गया। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की स्मृति में रामकृष्ण मिशन स्थापित किया तथा उनके द्वारा दिए हुए वेदांत के उपदेशों को एशिया, यूरोप तथा अमेरिका की जनता में आजीवन प्रचार किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने उपदेशों के साथ साथ यह क्रियात्मक रूप से भी सिद्ध कर दिया कि यदि उनके परम पूज्य गुरु के अनुभवों के अनुसार प्राचीन वेदांत की व्यवस्था करके उसे वर्तमान जीवन से संबंधित कर दिया जाए तो भारत माता की प्रत्येक समस्या आसानी से सुलझ सकती। संक्षेप में स्वामी जी ने पाश्चात्य देशों में भावात्मक तथा भारत में क्रियात्मक वेदांत का प्रचार करके हिंदू धर्म की महानता को फैलाया। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में विश्व बंधुत्व के लिए भी प्रचार किया। सन 1902 में स्वामी जी का शरीर पूरा हो गया। Educational thoughts of Swami Vivekananda's philosophy of education was based upon the philosophy of idealism as well as humanism. Vivekananda criticized the contemporary system of education from the humanistic viewpoint. He was a humanist and pleaded for education for man-making. According to him, the function of education is the uncovering of the knowledge hidden in our mind. Educational thought of Swami Vivekananda can be understood as follows. In contrast to contemporary system of education, Vivekananda advocated education for self-development. He suggested Brahmacharya for self-development. Fulfillment of Swadharma was one of the important aims of education. By this, Swamiji suggested that there is no need to copy others. Everyone should grow up their own. Each child should be given opportunities to develop according to his own inner nature. He advocated character formation, which is one of the important aspects of education. He suggested hard work, cultivating moral and spiritual values to follow the Gurukul system of education, formation of good habits, learning through one's mistakes, etc. are the essence of education for character formation. Self-confidence, service for mankind, courage, realization of truth, all-around development of human personality, unity in diversity, etc. were the aims of education. Swamiji considered perfection in all aspects of one's endeavor is greatest creed of education. स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन, फिलॉसफी ऑफ लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन मानव के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण एवं प्रेरणादायक है।
उन्होंने बताया कि जीवन एक संघर्ष है। इस संघर्ष में केवल समर्थ ही विजय होती है तथा असमर्थ का विनाश हो जाता है। अतः विजय प्राप्त करके जीवित रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की प्रत्येक चुनौती के साथ डटकर संघर्ष करना चाहिए। स्वामी जी को तत्कालीन भारतीय जनता के कष्टों को देखकर बड़ा दुख होता था। एक दिन उन्होंने कहा, आज हम लोग दीनहीन हो गए। हम प्रत्येक कार्य को दूसरों के डर से करते हैं, डरते हुए बोलते हैं तथा डरते हुए सोचते हैं। ऐसा लगता है कि हमने शत्रुओं के देश में जन्म लिया है, मित्रों के लिए। इस शोचनीय तथा हीन दशा का कारण उन्होंने यह बताया कि हम अपने जीवन में वेदांत का समावेश नहीं करते। उन्होंने कहा कि भीरू, मलिन तथा उदासीन व्यक्ति अपने जीवन में किसी कार्य को नहीं कर सकता। पृथ्वी का उद्धार केवल बहादुर योद्धा ही कर सकते हैं। अतः स्वामी जी ने भारतीयों को वीर, कर्मठ तथा निर्भय बनने का सुझाव देते हुए कहा, वीर बनो, हमेशा कहो मैं निर्भय हूं, सबसे कहो डरो मत। भय मृत्यु है, भय पाप है, भय नरक है, भय अधर्मिता है तथा भय का जीवन में कोई स्थान नहीं। बी अ हीरो, ऑलवेज से आई हैव नो फियर, टेल दिस टू एवरीबडी, हैव नो फियर, टू हिम फियर इज डेथ, फियर इज सिन, फियर इज हेल, फियर इज अनराइटनेस, फियर इज रॉन्ग लाइफ। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन का सार है अभय होकर संघर्ष के द्वारा मानवता की सेवा करना। स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा दर्शन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की नस नस से भारतीयता तथा आध्यात्मिकता कूट कूट कर भरी हुई थी। अतः उनके शिक्षा दर्शन का आधार भी भारतीय वेदांत तथा उपनिषद ही रहे। वे कहते थे कि प्रत्येक वाणी में आत्मा विराजमान है। इस आत्मा को पहचानना ही धर्म है। स्वामी जी का अटल विश्वास था कि सभी प्रकार का सामान्य तथा आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य के मन में, अधिकतर इसकी खोज नहीं हो पाई है, यहां ढका ही रह जाता है। पर जब इस पर पड़ा हुआ आवरण उतार दिया जाता है तो हम कहने लगते हैं कि हम सीख रहे हैं। संक्षेप में स्वामी विवेकानंद के अनुसार कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं सिखाता, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप स्वयं ही सीखता है। बाहरी शिक्षक तो केवल सुझाव ही प्रस्तुत करता है, जिससे भीतरी शिक्षक को समझने और सीखने के लिए प्रेरणा मिल जाती है। इसी दृष्टि से स्वामी जी ने अपने समय की शिक्षा को निषेधात्मक बताया तथा लोगों से कहा, आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जिसने कुछ परीक्षाएं पास कर ली हो तथा अच्छे भाषण दे सकता हो, पर वास्तविकता यह है कि जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं कर सकती, जो चरित्र निर्माण नहीं कर सकती, जो समाज सेवा की भावना को विकसित नहीं कर सकती तथा जो शेर जैसा साहस पैदा नहीं कर सकती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ। उन्होंने अपने समय की शिक्षा का कलुषित चित्र प्रस्तुत करते हुए उसका घोर विरोध किया तथा बताया कि केवल पुस्तकीय ज्ञान व्यर्थ है। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है। मस्तिष्क की शक्ति में वृद्धि होती है, बुद्धि विकसित होती है तथा जिसको प्राप्त करके व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। उपयुक्त पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी विवेकानंद का शिक्षा के प्रति अत्यंत विस्तृत दृष्टिकोण रहा। उन्होंने यह भी बताया कि भारत को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के पश्चात
यहाँ के नागरिकों को पाश्चात्य विद्वानों का अध्ययन करके तकनीकी शिक्षा की भी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे उद्योग धंधे विकसित हो सके तथा हमारा देश पुनः धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए। संक्षेप में स्वामी विवेकानंद ने सैद्धांतिक शिक्षा का खंडन करते हुए व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया। इस संबंध में उन्होंने भारतीयों को समय समय पर सचेत करते हुए कहा, तुम तो कार्य के प्रत्येक क्षेत्र को व्यवहारिक बनना पड़ेगा। संपूर्ण देश का सिद्धांतों के ढेरों ने विनाश कर दिया है। यू विल हैव टू बी practical in all aspects of work. The whole country has been ruined by mass theory. स्वामी विवेकानंद के आधारभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की गणना संसार के महान शिक्षा शास्त्रियों में की जाती है। उनके शिक्षा दर्शन संबंधी आधारभूत सिद्धांतों पर हम निम्नलिखित पंक्तियों में प्रकाश डाल रहे हैं। सर्वप्रथम, पुस्तकों का अध्ययन ही शिक्षा नहीं। ज्ञान व्यक्ति के मन में विद्यमान है, वह स्वयं ही सीखता है। चित्त की एकाग्रता की शक्ति ज्ञान प्राप्त करने की कुंजी है। इस शक्ति को विकसित करने के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। मन, वचन तथा कर्म की शुद्धि, आत्म नियंत्रण। शिक्षा बालक का शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास करे। शिक्षा बालक में आत्मिक निष्ठा तथा श्रद्धा विकसित करे एवं उसमें आत्मत्याग की प्रगति करके पूर्णता की अभिव्यक्ति करे। शिक्षा से बालक के चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े तथा बुद्धि विकसित हो, जिससे वह अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। धार्मिक शिक्षा को पुस्तकों की अपेक्षा व्यवहार, आचरण तथा संस्कारों के द्वारा दिया जाए। बालक तथा बालिका दोनों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। स्त्रियों को विशेष रूप से धार्मिक शिक्षा दी जाए। जन साधारण में शिक्षा का प्रचार किया जाए। तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जिससे औद्योगिक उन्नति हो तथा देश की आर्थिक दशा सुधर जाए। शिक्षक एक मित्र, दार्शनिक तथा पथ प्रदर्शक है। उसे सहानुभूतिपूर्ण ढंग से बालक के मस्तिष्क में स्थित ज्ञान का पथ प्रदर्शन करना चाहिए। शिक्षक तथा छात्रों का संबंध अधिक से अधिक निकट का हो। पाठ्यक्रम में उन सभी विषयों को स्थान दिया जाए जिनके अध्ययन से बालक का भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार का विकास हो जाए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ केवल उन सूचनाओं से ही नहीं है जो बालकों के मस्तिष्क में बलपूर्वक घुसी जाती है। उन्होंने लिखा है, यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते तथा विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया ऋषि बन जाते। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य से पहले से विद्यमान है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी रीच्ड इन मैन। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित होने चाहिए। पूर्णत्व को प्राप्त करने के उद्देश्य, द एम ऑफ रीचिंग परफेक्शन। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य अंतर्निहित पूर्णता को प्राप्त करना है।
उनके अनुसार लौकिक तथा आध्यात्मिक सभी ज्ञान मनुष्य के मन में पहले से ही विद्यमान होते हैं। इस पर पड़े आवरण को उतार देना ही शिक्षा है। अतः शिक्षा को मनुष्य के अंतर्निहित ज्ञान अथवा पूर्णत्व की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। दूसरा, शारीरिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट एम। विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास है। उन्होंने शारीरिक उद्देश्य पर इसलिए बल दिया जिससे आज के बालक भविष्य में निर्भीक तथा बलवान योद्धा के रूप में गीता का अध्ययन करके देश की उन्नति कर सके। शिक्षा के मानसिक उद्देश्य पर बल देते हुए उन्होंने बताया कि हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसे प्राप्त करके मनुष्य अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तीसरा, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्वामी जी का विश्वास था कि किसी देश की महानता केवल उसके संसदीय कार्य से नहीं होती, अपितु उसके नागरिकों की महानता से होती है। पर नागरिकों को महान बनाने के लिए उनका नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास परम आवश्यक है। अतः शिक्षा इस पर ध्यान दे। ऐसा होने पर अगला उद्देश्य, चरित्र निर्माण का उद्देश्य, कैरेक्टर डेवलपमेंट एम। विवेकानंद जी ने चरित्र निर्माण को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन पर बल दिया और बताया कि ब्रह्मचर्य के द्वारा मनुष्य में बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्तियां विकसित होगी तथा वह मन, वचन और कर्म से पवित्र बन जाए। अगला उद्देश्य, आत्मविश्वास तथा श्रद्धा एवं आत्मत्याग की भावना का उद्देश्य, द एम ऑफ डेवलपिंग फेथ इन oneself, श्रद्धा एंड स्पिरिचुअलिटी ऑफ रीयूनियन। स्वामी जी ने आजीवन इस बात पर बल दिया कि अपने ऊपर विश्वास रखना, श्रद्धा तथा आत्मत्याग की भावना को विकसित करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उन्होंने लिखा है, उठो, जागो और उस समय तक बढ़ते रहो जब तक कि चरम उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए। Arise, awake and stop no till the goal is achieved। अगला उद्देश्य, विभिन्नता में एकता की खोज का उद्देश्य, द एम ऑफ सर्चिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य विभिन्नता में एकता की खोज करना। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत एक ही है, अतः विभिन्नता की अनुभूति दोष अथवा माया है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बालक विभिन्नता में एकता की अनुभूति करने लगे। अगला, धार्मिक विकास का उद्देश्य, रिलीजियस डेवलपमेंट एम। स्वामी जी ने धार्मिक विकास को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना। वे चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति उस सत्य अथवा धर्म को मालूम कर सके जो उसके अंदर छिपा हुआ है। इसके लिए उन्होंने मन तथा हृदय के प्रशिक्षण पर बल दिया और बताया कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसे प्राप्त करके बालक अपने जीवन को पवित्र बना सके तथा उसमें आज्ञा पालन, समाज सेवा एवं महापुरुषों और संतों के अनुकरणीय आदर्शों को अपनाने की क्षमता विकसित हो जाए। करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद।
Swamiji suggested a comprehensive concept of curriculum education. The aim of education should be the development of spiritual and physical life of the child. She advocated inclusion of all those subjects and activities in the curriculum which foster material welfare with spiritual advancement. Swamiji prescribed religion, philosophy, epic, Upanishad, etc. to be the part of the curriculum. Besides, he recommended including the subject like language, geography, science, political science, economics, psychology, art, agriculture, industrial and technical subjects together with games and sports in curriculum. Swamiji suggested brahmacharya, spiritualism, meditation, concentration, etc. as the basic methods of teaching. He also suggested practice of yoga, lecture, discussion, self-experience, and creative activities as method of teaching. स्वामी जी के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य आध्यात्मिक विकास है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने लौकिक समृद्धि को कोई स्थान नहीं दिया। उन्होंने पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन सभी विषयों को सम्मिलित किया जिसके अध्ययन से आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक उन्नति भी होती रहे। स्वामी जी ने आध्यात्मिक पूर्णता के लिए धर्म, दर्शन, पुराण, उपनिषद, साधु संगत, उपदेश तथा कीर्तन और लौकिक समृद्धि के लिए भाषा, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान, मनोविज्ञान, कला, व्यावसायिक विषय, कृषि, प्रावैधिक विषय, खेल कूद तथा व्यायाम आदि विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया। स्वामी जी के अनुसार शिक्षण पद्धति कैसी होनी चाहिए? स्वामी जी ने भारत की उसी प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षण पद्धति को अपनाने पर बल दिया जिसमें गुरु और शिष्य के संबंध अत्यंत घनिष्ठ रहते थे। आध्यात्मिक अथवा गर्भ पद्धतियों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। चित्त की वृत्तियों को योग द्वारा विरोध करना, मन को केंद्रीकरण विधि द्वारा विकसित करना, ज्ञान को व्याख्यान, तर्क, विचार विमर्श, स्व अनुभव तथा रचनात्मक कार्यों एवं उपदेशों द्वारा अर्जित करना, शिक्षक के गुणों तथा चरित्र का बुद्धि द्वारा अनुकरण करना, बालक को व्यक्तिगत निर्देशन तथा परामर्श विधि द्वारा उचित मार्ग की ओर अग्रसर करना। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, स्टूडेंट एंड टीचर अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। Swami was in favor of self-discipline, not discipline imposed by others. He advocated human discipline through brahmacharya and meditation. He believed that the realization of the self was the real path. According to him, a child is the repository of all types of knowledge. Like the plant, the child grows on his or her own. He advocated helping the child to grow naturally and spontaneously. The role of teacher is to help the child for his or her natural way of development and living. To him, a teacher is one who practices yoga, meditation, and brahmacharya. Unless a teacher knows the way of achieving spiritualism, he or she cannot teach the child to develop spiritualism.
Swami defined teacher as a philosopher, friend, and guide, helping the child to go forward in his own way. तो बालक का स्थान प्लेस ऑफ चाइल्ड स्वामी विवेकानंद के अनुसार कैसा होना चाहिए? फ्रोबेल की भांति स्वामी जी ने भी बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना तथा बताया कि बालक लौकिक तथा आध्यात्मिक सभी प्रकार के ज्ञान का भंडार है। वह पेड़ तथा पौधों की भांति स्वयं ही स्वाभाविक रूप से विकसित होता है अतः उन्होंने बालकों को स्वयं विकसित होने का सुझाव देते हुए कहा, अपने अंदर जाओ और उपनिषदों को अपने में से बाहर निकालो। तुम सबसे महान पुस्तक हो जो कभी भी अथवा होगी। जब तक अंतरात्मा नहीं खुलती समस्त बाह्य शिक्षण व्यर्थ है। Go into your own and get the Upanishad out of your oneself. You are the greatest book that ever or will be. Until the inner teacher opens, all outside teaching is in vain. अब शिक्षक का स्थान कैसा होना चाहिए? स्वामी जी को स्वशिक्षा में विश्वास था। वे कहते थे कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं शिक्षक है। बाह्य शिक्षक तो केवल ऐसे सुझाव प्रस्तुत करता है जिनसे आंतरिक शिक्षक आत्मा को कार्य करने और समझने के लिए चेतना मिलती। अतः शिक्षक के स्थान पर प्रकाश डालते हुए स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं, शिक्षक एक दार्शनिक मित्र तथा पथ प्रदर्शक है जो बालक को अपने ढंग से अग्रसर होने के लिए सहायता प्रदान करता है। टीचर इज द फिलोसोफर, फ्रेंड एंड गाइड, हेल्पिंग द एजुकेंट टू फॉरवर्ड इन हिज ओन वे। जनसाधारण की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ मासेस। स्वामी जी के समय में शिक्षा जनसाधारण को सुलभ न, इसका क्षेत्र केवल समर्थ व्यक्तियों तक ही सीमित था। फलस्वरूप दीन दुखियों तथा निम्न वर्ग के लोगों को पेट भरकर भोजन भी नहीं मिल पाता। अतः स्वामी जी ने तत्कालीन भारतीय समुदाय की आर्थिक दृष्टि से हीन दशा को सुधारने के लिए जनसाधारण की शिक्षा पर बल दिया और कहा, मैं जनसाधारण की अवहेलना करना महान राष्ट्रीय पाप समझता हूं। यह हमारे पतन का मुख्य कारण है। जब तक भारत की सामान्य जनता को एक बार फिर उपयुक्त शिक्षा, अच्छा भोजन तथा अच्छी सुरक्षा प्रदान की जाएगी, तब तक प्रत्येक राजनीति बेकार सिद्ध होगी। I consider that the great national sin is the neglect of the masses, and that is one of the causes of our downfall. No amount of politics would be to any avail until the masses of India are once more well educated, well fed and well cared for. अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन एंड एस्टिमेट ऑफ स्वामी विवेकानंद फिलॉसफी। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद, आदर्शवाद तथा प्रयोजनवाद आदि सभी मुख्य दार्शनिक विचारों की झलक दिखाई पड़ती है। प्रकृतिवादियों की भांति स्वामी जी ने बताया कि सच्ची शिक्षा प्रकृति के संपर्क में रहकर ही प्राप्त हो सकती है। आदर्शवादियों की भांति
उन्होंने बताया कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का आध्यात्मिक विकास करके उसके उस पूर्णत्व की अभिव्यक्ति करना है जो उसके पहले से विराजमान है। ऐसे ही प्रयोजनवादियों की बातें स्वामी जी ने पाश्चात्य देशों की कला, उद्योग तथा तकनीकी शिक्षा की उपयोगिता को अपनी कला के साथ साथ समन्वित करके करने का सुझाव प्रस्तुत किया। वस्तु स्थिति यह है कि स्वामी जी के शिक्षा संबंधी विचारों में प्राचीन तथा आधुनिक विचारों का समन्वय है। अतः वे जहां एक और बालक के आध्यात्मिक विकास पर बल देते हैं, वहां दूसरी ओर वे लौकिक स्मृति के लिए भी तैयार करना चाहते हैं। इसी प्रकार एक महान संत की भांति स्वामी जी जहां एक और वसुधैव कुटुंबकम के भाव का प्रचार करते हैं, वहां दूसरी ओर वे राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए शक्ति के निर्माण तथा उसके संचय पर भी बल देते। कुछ भी हो, स्वामी जी ने मानव जीवन के विभिन्न पक्षों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवसायिक तथा आध्यात्मिक विकास पर ही बल नहीं दिया, अपितु स्त्री शिक्षा, जन समुदाय की शिक्षा तथा धार्मिक शिक्षा आदि अनेक पक्षों की विस्तृत व्याख्या करते हुए मानव के चारित्रिक विकास पर बल दिया। स्वामी जी के शिक्षा दर्शन पर विहंगम दृष्टिपात करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि वे हृदय से आदर्शवादी थे। उन्होंने सर्वप्रथम आध्यात्मिक विकास, दूसरे भौतिक समृद्धि, तीसरे जीवन की रक्षा तथा चौथे भोजन की समस्याओं को सुलझाने पर बल दिया। इस प्रकार डॉक्टर आर.एस. मनी के शब्दों में उनके जीवन का लक्ष्य इस बात का प्रचार करना था कि लोगों में श्रद्धा तथा मानसिक वीर्य का विकास हो, वे आत्मा का ज्ञान प्राप्त करें तथा अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए त्याग दें। यही थी उनकी इच्छा तथा आशीर्वाद। His life mission was to advocate that people should be possessed of Shraddha, faith, or Virya, courage, and attain to the knowledge of Atma and sacrifice their lives for the good of others. This was his wish and blessing. अंत में सार संक्षेप में हम कह सकते थे कि उनका जीवन दर्शन अभय होकर संघर्ष करना तथा संघर्ष द्वारा मानवता की सेवा करना था। शिक्षा दर्शन की बात करें तो शिक्षा मानसिक चारित्रिक विकास करके बालक के पैरों पर खड़ा करे, ऐसा होना चाहिए। शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत क्या क्या थे? स्वामी जी के अनुसार शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो यानी बुद्धि विकसित हो, आत्मनिष्ठा तथा श्रद्धा विकसित हो आदि। शिक्षा का अर्थ स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ शिक्षा सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से विद्यमान। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, चरित्र निर्माण, पूर्णत्व को प्राप्त करना, आत्मा की भावना को विकसित करना, आत्मविश्वास, श्रद्धा का विकास, विश्व बंधुत्व की भावना को अनंत बनाना, विभिन्नता में एकता की खोज करना तथा
व्यवसायिक उन्नति करना। स्वामी जी के अनुसार पाठ्यक्रम वे सभी विषय जिनके अध्ययन से आध्यात्मिक तथा भौतिक विकास हो सके, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। स्वामी जी के अनुसार शिक्षण पद्धति आध्यात्मिक होना चाहिए। बालक का स्थान स्वामी जी के अनुसार कैसा होना चाहिए? शिक्षा का केंद्र, बालक का स्थान शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। स्वामी जी के अनुसार शिक्षक का स्थान दार्शनिक, मित्र तथा पथ प्रदर्शक होना चाहिए। स्वामी जी मूल्यांकन के बारे में कहा है। स्वामी विवेकानंद आदर्शवादी थे। उन्होंने बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देते हुए मानव जाति की सेवा की। थैंक यू।